Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the question answers of the chapter Influenza of class 8 of English. In the last video we covered the part 2 of the chapter, explanation of this chapter, and if you want the video for part 1 and part 2 explanation of this chapter, then I have given the link of both the videos in the description box so you can go and check it out. Now let us move towards the question answers. In this video, we are going to cover the two parts of the question answer, which is answer these questions, and the second question is read from the text and answer the following questions. So अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. That is, a pun is a play on words. Explain the pun used by the children in their song about flu. तो इसमें हमें पूछा है कि जो चैप्टर के शुरुआत में जो हमने एक पोएम पढ़ी थी जो कि चिल्ड्रन जो है इन्फ्लुएंजा के टाइम पे गाते थे, तो उसी पोएम को हमें यहाँ पर लिखना है. सो इन द आंसर वी विल राइट दैट पोएम ओनली. दैट इज, आई हैड अ लिटिल बर्ड एंड इट्स नेम वॉज एंजा एंड आई ओपन द विंडो एंड इन्फ्लुएंजा. So this was the answer. Now let's move towards the second question. This is that describe how the flu pandemic affected India. So जब इन्फ्लुएंजा वायरस इंडिया में आया था तब इंडिया को इन्फ्लुएंजा वायरस ने कैसे अफेक्ट किया था और क्या क्या चीज़ें जो हैं और क्या क्या मुश्किलें जो है इंडिया को सामना करना पड़ा था इन्फ्लुएंजा की वजह से, बस वही लिखने हैं. सो आंसर इज दैट इंडिया हैड वर्स्ट कंडीशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा. India was the country that probably suffered the most during the time of influenza. Influenza entered India in June 1918, where first case was reported in Bombay and then it spread all over the India. And unfortunately, several of India's best doctors were serving in the British Army at that time, which made it more difficult for the country to cope up with the destruction of lives caused by the disease. And over 16 million people in India died of the disease in 1 year due to influenza. तो यही बताया कि इंडिया जो है उसने सबसे ज़्यादा जो है सफ़र किया था इन्फ्लुएंजा की वजह से, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था, ऊपर से वहाँ पे ब्रिटिश रूल था, इसलिए जो हमारे इंडिया के डॉक्टर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे और इसलिए पूरी इंडिया में इन्फ्लुएंजा फैल गया था और उसमें 16 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी इंडियंस की. I hope this question is clear. Now let's move towards the third question, which is, now it has two parts. Okay. Third question is, A part is that what is cross-strain interactions? What are being they referred to in the last paragraph of the text? सो हमें पूछा है कि क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस जो है, यानी कि क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस यानी कि जब एक ही ह्यूमन को दो दो वायरसेस जो हैं, जो कि एवियन वायरस यानी कि बर्ड फ्लू वायरस और ह्यूमन फ्लू वायरस एक साथ हो जाते हैं, तो वो जो है क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस होते हैं वायरसेस के बीच में. तो वो वही बताया है कि कौन सा जो क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शन है उसे लास्ट पैराग्राफ में किससे कंपेयर किया गया है, किससे रेफर किया गया है. सो आंसर होगा दैट क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शन रेफर्ड हियर इज नोन एज वायरल चैटर. कि हमने पढ़ा था ना कि कुछ साइंटिस्ट इसे वायरल चैटर भी बोलते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस होती हैं उसे हम वायरल चैटर बोलते हैं. एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द टेररिस्ट चैटर दैट गोज ऑन एयरवेव्स. सो दिस ऑल आंसर वॉज गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ. Now let's move towards the B part of this question, which is, why do these pose a particular threat? इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस होती हैं वो एक थ्रेट क्यों पैदा कर देती है, एक खतरनाक क्यों हो सकती है क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस. सो आवर आंसर विल बी दैट क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस can cause a threat as if a person is infected by an avian virus and a human flu virus simultaneously. Then the two microbes can combine their genetic material inside the cell and create new strain of influenza which could lead to death of that person and will become invulnerable to the human immunity system. So इसमें हमें यही बताया है कि जो क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस होती हैं वो इसलिए पर्सन के लिए थ्रेट पैदा कर सकती है क्योंकि क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शन में एवियन वायरस और ह्यूमन फ्लू वायरस दोनों अपने माइक्रोब्स को कंबाइन करके एक नया जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे इन्फ्लुएंजा का नया जो स्ट्रेन है, एक नई जो वेव है वो पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस से बाहर निकलना. तो इसलिए ये जो है क्रॉस स्ट्रेन इंटरेक्शंस कैन कोज अ पर्टिकुलर थ्रेट टू द पर्सन. Now our next question is, read the sentences from the text and answer the following questions. So here some text is given to us and according to this text there are some questions derived from this text.
and we have to answer those questions. So first one is that doctors were able to identify this by the bluish color of the victim's skin. तो ये हमें चैप्टर की बिगनिंग में ही दे रखा होता है कि किस तरीके से जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं उसमें ब्लूइश कलर हो जाता है एक पर्सन का. तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिराइव करके क्या दे रखा है, दैट व्हाट वर द डॉक्टर्स एबल टू आइडेंटिफाई, कि डॉक्टर्स वर एबल टू आइडेंटिफाई, ये हमने दे रखा तो बहुत ईजी इससे आंसर आ जाएगा. दैट डॉक्टर्स वर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस और नॉट बाय द ब्लूइश कलर ऑफ द विक्टिम्स skin. So this was the answer. Now next question is, what happened to the patients who had this condition? It means that कि जब एक पेशेंट को इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता था तो उससे क्या क्या चीज़ें, उसकी कंडीशन क्या हो जाती थी और वो कौन से दूसरी चीज़ों से फिर सफ़र करना पड़ता था. सो the patients who had influenza virus suffered from the bronchial pneumonia or food poisoning or blood poisoning, and many of them died or developed heliotrope cyanosis, and also the victim's skin color changed to bluish color. तो यही होता है कि जैसे भी यहाँ पे इज़ द नहीं आएगा बल्कि पेशेंट्स हु हैड इन्फ्लुएंजा वायरस, ओनली यही लिखेंगे हम. ये थोड़ा टाइपिंग एरर है. नाउ हम क्या लिखेंगे, दैट इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, जिससे भी कोई भी आदमी अगर उससे सफ़र कर रहा होता है तो उसे ब्रोंकियल निमोनिया हो जाता है, या फिर इसे हम ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं. और जिसे भी होता है उसको या तो ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है या फिर उन्हें हीलियोट्रोप साइनोसिस हो जाती है, और उसकी जो विक्टिम की स्किन होती है जिसे इन्फ्लुएंजा हुआ होता है उसकी जो स्किन का कलर है वो भी ब्लूइश हो जाता है. Now next statement given to us is that while this heroic and imaginative attempts to deal with the new strain of influenza went on, कि जो अटैम्प्ट्स थे इन्फ्लुएंजा वायरस को ख़त्म करने के लिए वो जो है वो चालू थे, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अटैम्प्ट्स आर बीइंग रेफर्ड टू हियर, कि कौन से अटैम्प्ट जो है यहाँ पर हमें बताए गए हैं. So the answer will be that the attempts referred here were the practices done to prevent the spread of virus, where the streets were sprayed with the chemicals and people wore anti-germ masks. And some factory owners changed their no smoking rules in a belief that smoking could kill the virus, and other people believed that eating plenty of porridge would protect them from the disease. तो इसमें हमें यही बताना था कि जो अटैम्प्ट्स हैं वो कौन से अटैम्प्ट्स यहाँ पर रेफर किए गए, वो यही अटैम्प्ट्स थे जो कि इन्फ्लुएंजा के स्प्रेड को रोक सकते थे. और इन्फ्लुएंजा के स्प्रेड को कैसे रोकना था, कि स्ट्रीट्स जो हैं उसमें केमिकल छिड़काए जाते थे, सारे पीपल मास्क पहनने लग गए थे, और कुछ को ये लगता था कि स्मोकिंग करने से जो है हम वायरस को किल कर सकते हैं, और कुछ को लगता था कि ज़्यादा पोरिज खाने से भी हम उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को. लेकिन ये जो सारे अटैम्प्ट्स थे वो फेल हो गए थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस, दैट व्हाट वर द अटैम्प्ट साइंटिफिक and did these attempts yield any result? So our answer हमने यहाँ पूछा है कि साइंटिफिक ये जो अटैम्प्ट्स थे क्या वो साइंटिफिक थे, कि साइंटिफिक फील्ड में थे, कि ये जो सारे भी अटैम्प्ट्स थे वो हम साइंस की फील्ड में ले सकते थे, कि कुछ ना कुछ उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था उस अटैम्प्ट के पीछे. और पूछा है कि ये जो अटैम्प्ट लिए गए थे क्या उनको कोई अच्छा रिजल्ट आया, कि इन्फ्लुएंजा का जो फ्लो है वो कम हुआ या नहीं. सो आवर आंसर विल बी दैट येस, सम अटेम्प्ट्स वर साइंटिफिक वेयरएज सम वर नॉट, एंड नो दीज अटेम्प्ट्स डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट. सो हाँ, कुछ जो अटेम्प्ट्स थे वो साइंटिफिक थे, जैसे कि सड़कों को स्प्रे करना केमिकल से, और लोग जो थे वो मास्क पहनते थे, लेकिन कुछ नहीं भी थी. और क्योंकि कुछ जो थे वो सिर्फ बिलीफ थे लोगों के, एंड और इसका रिजल्ट कुछ भी है जो नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है वो बढ़ना आगे नहीं रुका था. Then third statement given to us is that this epidemic almost extinguished the basic human desire to help those in need. So this is the statement. Now first question is, why did this epidemic has such an effect? कि इस एपिडेमिक का जो है इतना बड़ा इतना भयानक अफेक्ट कैसे हुआ, कि जो लोग जो हैं अब एक दूसरे की हेल्प भी करने के लिए तैयार नहीं थे. और क्यों नहीं थे वही हमें रीज़न बताना है, कि जो लोग हैं इन्फ्लुएंजा की वजह से क्यों लोग दूसरे लोगों की हेल्प नहीं कर रहे थे. तो रीज़न क्या लिखेंगे, दैट द एपिडेमिक हैड सच एन इफेक्ट एज इट वाज अ वायरल डिजीज एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्यू टू विच पीपल वर नॉट एबल टू मीट ईच अदर एंड हेल्प देम. तो यही बताना था कि इतना भयानक इफेक्ट इन्फ्लुएंजा की वजह से कैसे हो गया, कि लोग जो हैं
दूसरे की हेल्प करनी छोड़ दी, क्योंकि अगर वो उनके पास जाएंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर से उनके ऊपर भी सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे और उनकी भी डेथ हो सकती है। तो डर की वजह से जो है लोगों ने दूसरों की हेल्प करनी भी छोड़ दी थी। नाउ व्हाट एग्जांपल डज द ऑथर गिव टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कि ऑथर ने जो है जिसने लिखा है ये चैप्टर, तो उसने इसको बताने के लिए कि किस तरीके से लोगों ने हेल्प करनी भी बंद कर दी थी, तो वो किस एग्जाम्पल को लेकर बताया है कि किस तरीके से लोगों ने हेल्प करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा दैट ही रोट दैट द यंग पीपल हु डिड नॉट सफर फ्रॉम इन्फ्लुएंजा were well aware by its symptoms, so they didn't even look at their neighbors to help them, as they were so scared after looking at the symptoms of the disease. कि हमें एक एग्जाम्पल दिया था ऑथर ने कि जो यंग पीपल थे जिन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं था, वो भी जो है उनके सिम्टम्स के बारे में जानते थे और सिम्टम्स इतने खतरनाक थे कि उन्हें सिम्टम्स को देख के इतना डर लगता था कि अगर वो खुद उस इन्फ्लुएंजा वायरस से सफ़र करेंगे तो उनका भी कितना बुरा हाल होने वाला है। तो इसलिए वो अपने नेबर्स की तरफ देखते भी नहीं थे और हेल्प करनी तो बहुत दूर की बात है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज सिटीज़ बिकेम वर्चुअल गोस्ट टाउन्स, कि जो सारी जो शहर हैं वो सब कुछ बिल्कुल गोस्ट टाउन्स बन गए, यानी कि सब कुछ खाली हो गया था सिटीज़ में। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मेंट बाय गोस्ट towns. So answer will be that ghost towns here refers to all the towns and cities which were affected by influenza, and due to it the people were scared and all the streets were empty. So जो इन्फ्लुएंजा वायरस था इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकलते थे और सारे अपने घर में ही रहते थे, इसलिए सारी जो सड़कें थी, स्ट्रीट्स थी, वो सब कुछ खाली रहती थी और इसलिए उसे गोस्ट टाउन्स कहा गया है। नाउ नेक्स्ट बी क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड दिस गोस्ट टाउन्स केम इनटू बीइंग, कि ये जो गोस्ट टाउन्स हैं वो कैसे बने, यानी कि लोग जो है अपने घर के अंदर क्यों रहने लगे, वो इसका रीज़न क्या था, इन्फ्लुएंजा। सो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। Now the last statement, fifth statement is that in some countries the measures taken to contain the outbreaks have been severe, कि कुछ कंट्रीज़ में जो आउटब्रेक्स जो थे, यानी कि इन्फ्लुएंजा के जो न्यू स्ट्रेन्स थे, उनके लिए जो मेजर्स लिए गए थे उनको कि लोगों को जो इन्फ्लुएंजा के नए स्ट्रेन है उससे सफ़र ना करना पड़े, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए थे और वो जो थे मेजर्स वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन लोगों को जो है वो अपनानी पड़ रही थी उनके आउटब्रेक्स के कारण। सो नाउ ए क्वेश्चन इज दैट विच आउटब्रेक्स आर बीइंग रेफर्ड हियर, कि कौन से जो इन्फ्लुएंजा के नए स्ट्रेन्स हैं उनकी वजह से जो है मेजर लिए गए थे। सो आउटब्रेक्स, आंसर विल बी आउटब्रेक्स रेफर्ड हियर आर द वेरियस स्ट्रेन्स, here strands it is wrong, so here you will write strains of influenza virus such as bird flu virus and H1N1. so H1N1 और bird flu virus जो थे वो इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स थे, उसी के टाइप के जो हैं वायरसेस थे, तो इसलिए जो है बहुत ही जो कड़े मेजर्स जो हैं वो लिए गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेजर्स वर टेकन, कि जो H1N1 और बर्ड फ्लू वायरस से बचने के लिए कौन से मेजर्स, कौन से तरीके अपनाए गए थे। सो आंसर विल बी दैट द पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रैवलिंग, चिल्ड्रन एंड टीचर्स हैड टू हैव देयर टेम्परेचर्स taken, and bottles of sanitizers, hand wash have been made freely available and mandatory to use by the people. कि जब H1N1 और बर्ड फ्लू वायरस आए तब सभी लोगों को कहीं भी जाना, जिस तरीके से कोविड-19 में बंद हो गया था जाना कहीं पे भी, इस तरीके से ट्रैवलिंग पर रोक लगा दी गई थी। चिल्ड्रन और टीचर्स को अपने जो टेम्परेचर्स हैं वो चेक करवाने पड़ते थे स्कूल में एंटर करने से पहले कि किसी को भी इन्फ्लुएंजा वायरस ना हो। और उसके बाद में सैनिटाइज़र जो है, हैंड वॉश होते हैं, सैनिटाइजिंग हैंड वॉश जो होते हैं वो भी हर जगह पर सभी लोगों को प्रोवाइड किए गए थे फ्रीली, वो भी फ्री में, और बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया था कि आपको ज़रूरी है कि आपको सैनिटाइजिंग स्टरलाइजिंग हैंड वॉश जो है वो यूज़ करने ही करने हैं। देन सी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट डिड दिस मेजर्स डिफर इन एनी वे फ्रॉम दोज टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा, कि इन्फ्लुएंजा के टाइम पे जो मेजर्स लिए गए थे और H1N1 और बर्ड फ्लू के वायरस पे जो मेजर्स लिए गए थे उसमें क्या कोई डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो वो लिखना है। सो आंसर विल बी दैट येस, उनमें डिफरेंस था, सच एज यूसेज ऑफ स्टरलाइजिंग हैंड वॉश, पीपल बिंग प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रैवलिंग। तो ये इन्फ्लुएंजा के टाइम पे इतना बंद नहीं हुआ था, लेकिन उसके वेरिएंट्स जब आए थे तो उसमें ये जो यूसेज ऑफ स्टरलाइजिंग हैंड वॉश है और पीपल बिंग प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रैवलिंग, ये नई चीज़ें थी
और नए मेजर्स थे जो कि इन्फ्लुएंजा के टाइम पे नहीं लिए गए थे. Okay, friends, so this was the question answers of the chapter. I hope all the question and answers are clear to you. And if you get all the question and answer clearly, so please like, share, and subscribe to my channel.